نے دیکھا ہے خدا کے کلام میں سے ریفرنس ہم نے لیا ہے زکریا کی کتاب، اس کا 9واں باب اور اس کی 9ویں اور 10ویں آیت۔ اور یہ ایک قسم کی پیشن گوئی ہے، یہ پیشن گوئی تھی، یہ پریڈکشن ہو رہی ہے یہاں پہ۔ یہ جو نبیوں کی جتنی بھی کتابیں ہیں پرانے عہد نامہ میں، ان میں جتنی بھی نبوت کی کتابیں ہیں ان میں نبوتیں کی گئی ہیں، یعنی پروفیسیز کی گئی ہیں آنے والے مسیح کے بارے میں۔ یعنی تب یسوع مسیح اس دنیا پر نہیں آئے تھے تو تب ان کے آنے کی پیشن گوئیاں بہت سے نبیوں نے پہلے سے کر دی، جن میں یسایہ سر فہرست ہیں۔ ان کی پیدائش کے بارے میں پروفیسیز کی گئی، پھر یسوع مسیح کے بارے میں زبور میں، اس کی مصلوبیت کے بارے میں، اس کے جی اٹھنے کے بارے میں، یعنی ہر ایونٹ جو یسوع مسیح کی زندگی میں بڑا ہمارے لیے خاص تھا، اس کی پیشن گوئی پہلے ہی ہو چکی تھی۔ آمین۔ اور ہم دیکھیں گے کہ یہ کیا ماجرا ہے، کیا بات ہو رہی ہے ابھی، جبکہ یسوع مسیح اس دنیا میں بھی نہیں ہے۔ یہ پرانے عہد نامے کی کتاب ہے اور یہاں پہ پیشن گوئی ہوئی ہے کہ دیکھ تیرا بادشاہ آتا ہے اور وہ گدھے کے بچے پر سوار ہے، وہ لادو پر سوار ہے۔ اب یہ داستان پوری ہوتی ہے، جو بنی اسرائیل تھے، تمام اسرائیل میں رہنے والے لوگ جو ہیں، یہودی جتنے بھی تھے، ان سب کی آنکھیں لگی ہوئی تھی آنے والے مسیح کے اوپر، ان سب کی آنکھیں آنے والے مسیح کے اوپر لگی ہوئی تھی۔ بنی اسرائیل قوم جو تھی، انہوں نے بہت ہی عزیز برداشت کی، نہایت دکھ اٹھائے، انہوں نے بڑی دفعہ ان کو برباد کیا گیا، اسیر کیا گیا، تباہ کیا گیا، اور ان سب کی نگاہیں کسی ایسے بادشاہ پر لگی ہوئی تھی جس کے بارے میں یہ پیشن گوئیاں ہو رہی ہیں کہ وہ بادشاہ جب آئے گا تو تمہارے سارے رونے دور کر دے گا، دکھ درد ختم کر دے گا، اور اس کی بادشاہی پشت در پشت رہے گی، اور وہ ازلی بادشاہ ہوگا، ابدی بادشاہ ہوگا، اور اس کی بادشاہی کا خاتمہ نہیں ہوگا، اس کی بادشاہی کا کوئی انت نہیں ہوگا، بلکہ وہ ایک ایسا سے حکومت کرے گا دنیا پر۔ اب اسرائیلی اس بات پر ڈٹے ہوئے تھے، ان کا ایمان تھا کہ کوئی ایک ایسا بادشاہ ہمارے بیچ میں سے پیدا ہوگا، اور کہا گیا تھا کہ داؤد کے گھرانے سے وہ بادشاہ پیدا ہوگا، تو سب کی آنکھیں داؤد کے گھرانے پر لگی ہوئی تھی۔ اب یہ جو یہودی لوگ تھے، ان کے اندر ایک بات، یہ جو ان کے اندر کی یہ بات تھی، اس کی بدولت وہ کبھی بھی ایسے ہی کسی کو بادشاہ تسلیم نہیں کر لیتے تھے۔ یسوع مسیح کے دور میں جانتے ہیں بادشاہ کون سا تھا؟ ہیرودیس بادشاہ جو تھا، اس کو بھی وہ بادشاہ اصل میں نہیں مانتے تھے، یہودی اس کو بادشاہ نہیں مانتے تھے، اس لیے یہودی کہتے تھے کہ جو بادشاہ ہونا چاہیے، ہمارا بادشاہ، آنے والا مسیح یعنی مسیحا، ہمیں چھڑانے والا، بچانے والا، جو آنے والا بادشاہ ہے، اس کی کنفرمیشن چاہیے ہمیں، پہلے ہمیں پورا پروف چاہیے، ثبوت چاہیے کہ یہ داؤد کے گھرانے سے ہے، اس لیے اس کی 14 پیڑھیوں کا ریکارڈ ہمارے پاس ہونا چاہیے۔ ایک دن ایک بیٹی بائبل کلاس میں کہتی ہے کہ یہ کیوں نسب نامہ ڈال دیا اتنا لمبا متی کی جیل میں، اس سے یہ پیدا، اس سے یہ پیدا ہوا، اس سے وہ پیدا ہوا، اس سے وہ پیدا، اس سے وہ پیدا، اتنی لمبی فہرست اتنے مشکل ناموں کی ڈال دیا۔ اس کا مقصد کیا تھا ڈالنے؟ بائبل مقدس میں کوئی بھی چیز ایسی نہیں ہے جو بے مقصد ہو، ہر لفظ کے پیچھے ایک رمز چھپی ہوئی ہے، ایک تھاٹ چھپا ہوا ہے، ایک خیال چھپا ہوا ہے، اور ایک تفسیر چھپی ہوئی ہے۔ جس بات کو بھی آپ کھولیں گے اس کے پیچھے آپ کو ایک بہت بڑی تفسیر اور ہسٹری ملے گی اس بات کے پیچھے۔ اب یہ نسب نامہ متی نے کیوں لکھا یسوع مسیح کا؟ یہودی ہیرودیس کو بادشاہ نہیں مانتے تھے، کیونکہ وہ کون تھا؟ ادومی تھا، وہ عیسو کی نسل سے تھا وہ، ٹھیک ہے، اور اس کے پاس 5 پیڑھیوں کا ریکارڈ بھی تھا اپنی، لیکن انہوں نے کہا نو، یہ وہ بادشاہ نہیں ہو سکتا ہمارا بادشاہ، ٹھیک ہے، ہم اسے تسلیم ہی نہیں کریں گے۔ اسی لیے وہ کسی ایسے بادشاہ کی تلاش میں تھے، انتظار میں تھے کہ جو بادشاہ آئے اور وہ بادشاہ داؤد کے گھرانے سے ہو، داؤد کے
घराने से वो बादशाह हो और जितनी पेशन गोइयां उसके बारे में कही गई हैं उसके हक में वो उनको पूरा भी करे, फिर वो कमवाली से भी पैदा हो। आमीन आमीन। इसलिए उन सब की नजरें लगी हुई थी कोई बादशाह आएगा। और फिर ऐसा होता है कि तारीख के अंदर एक ऐसा अजीब काम हुआ कि वो पूरी कायनात का, मैं कहता हूं यीशु मसीह की पैदाइश से लेकर उसके जान देने तक का जो ये अरसा है बीच में, ये जो टाइम है, ये टाइम पीरियड है, जो ये कायनात का इंटरचेंज है, ये इंटरवल है कायनात के अंदर। यीशु मसीह से पहले जो 4000 साल गुजर गए और उसके बाद आज तक जो 2023 साल गुजरे हैं, इनके बीच में वो एक ऐसा इंटरवल आया था जिस दिन यीशु मसीह पैदा हुए। तो बादशाह आए थे, सभा के बादशाह तेरे लिए नजराने लेकर आएंगे। और जब मजूसी लोग आए थे उन्होंने आके कहा क्या था हेरोदेस से, बादशाह पैदा होगा। कौन पैदा हुआ है? यहूदियों का बादशाह। सुनिए, यहूदियों का बादशाह जो पैदा हुआ है। अब गौर कीजिएगा, बादशाह पैदा हुआ है। आज तक कायनात में कोई बादशाह पैदा नहीं हुआ। बादशाहों के घरों में शहजादे पैदा होते हैं, फिर जब वो बड़े होते हैं तो फिर उनको बादशाह बनाया जाता है। मजूसी आकर कहते हैं कि वो कहाँ है जो पैदा ही होते हुए बादशाह है। आमीन आमीन। वो पैदा होते ही बादशाह पैदा हुआ था। सितारे ने उनको बताया कि कोई शहजादा पैदा नहीं हुआ बल्कि बादशाह पैदा हुआ है, जिसकी वजह से वो दुनिया की इंतहा से उठकर बैतलहम में चले। मिस्र से, इंडिया से, यूनान से मजूसी निकले, अपने तहाइफ लिए, और तहाइफ भी बादशाहों वाले लिए। बात समझ रहे हैं आप? और जब कहा कि वो यहूदियों का बादशाह जो पैदा होने वाला था वो पैदा हो चुका है, इस खबर को सुन के बहुत सारे लोग हैरान भी हुए और सबकी नजरें लग गई, वो कौन है, वो कौन है, कहां गया, कहां गया। हेरोदेस बादशाह ने साजिश की कि उसको वो कत्ल करवा दे। 2 साल के सारे बच्चे कत्ल करवा दिए, लेकिन यीशु मसीह बैतलहम छोड़कर बच्चे को लेकर मिस्र में भाग जा, क्योंकि एक पेशन गोई हुई थी यीशु मसीह के बारे में कि मैंने अपने बेटे को मिस्र से वापस बुलाया। फिर जब वो मर गया तो कहा कि तेरे बच्चे की जान के दुश्मन मर गए, अब मिस्र से वापस आ जा। फिर एक पेशन गोई हुई थी कि वो नासरी कहलाएगा, तो फिर कहा कि जा नासरत में जाके बस जा। बात समझ रहे हैं आप? अब सारी पेशन को यहाँ पूरी कर रहा था यीशु मसीह, और यीशु मसीह का चर्चा सारी दुनिया में आम हो गया। यीशु मसीह के मुअज्जिज़ात की जो धूम थी वो मच गई आसपास के सारे इलाकों में। यीशु मसीह जब अपनी मुनादी का आगाज किया तो तालीम देना शुरू किया तो कहा आसमान की बादशाही नजदीक आ गई है। शागिर्दों को चुना और बहुत सारे मुअज्जिज़ात किए, बहुत से बीमारों को ठीक किया, लंगड़ों को ठीक किया, अंधों को ठीक किया, जन्म के लंगड़े जन्म के अंदर ठीक होते गए, मुर्दे जिंदा किए यीशु मसीह ने, और उसकी शोहरत तमाम इलाकों में फैलती गई। और लोगों ने कहना शुरू कर दिया कि वो आने वाला बादशाह जो था वो और कोई नहीं है बल्कि वो मरियम और यूसुफ का बेटा, बड़ाई का बेटा यीशु मसीह है। समझ रहे हैं आप? लोगों ने ये कहना शुरू कर दिया। फिर दूर दूर से लोग उसे देखने आते थे कि वो कौन है, हम उसे देखें जाके, उस बादशाह को जो आने वाला बादशाह था हम उसे जाकर देखें, क्योंकि वो बादशाह हमारा आ चुका है। अब रोमी हुकूमत थी उस दौर में, यरूशलेम पर, यहूदिया पर, ये सारे इलाकों पर हुकूमत किसकी थी? रोमी पर। रोम की हुकूमत थी, रोमी सिपाही थे वहां पर, ठीक है। निचले दर्जे में ये अपने लोगों में ये होते थे, यहूदियों के सरदार कायम भी बने हुए थे, पंचायतें निबेड़ने वाले भी बने हुए थे, लेकिन असल जो अदालतें थी, मजहबी अदालतों से ऊपर जो अदालतें थी वो सियासी अदालतें वो रोमी हुकूमत वालों की थी। इसलिए अब ये बादशाह वाला काम रोम के लोगों को पसंद नहीं था कि हमारे होते थे कोई और बादशाह। अब लोग क्या कहते हैं, लोगों ने उसे बहुत दफा फॉलो करना शुरू कर दिया। अब यीशु मसीह जहां पर भी जाते थे हजारों के हिसाब से
भीड़ लग जाती थी, हजारों के हिसाब से अक्सर भीड़ लग जाया करती थी। ऐसा तब ही होता है जब कोई बहुत खास पर्सनैलिटी आती है, समझ रहे हैं आप। इसलिए लोगों ने बड़ी दफा यीशु मसीह को कहा तू हमारा बादशाह तू है, लेकिन यीशु मसीह ने अपने आप को जाहिर नहीं किया। यीशु मसीह ने अपने आप को जाहिर बिल्कुल नहीं किया। अब यीशु मसीह एक दफा, आप जानते हैं यूहन्ना की इंजील में लिखा है, यीशु मसीह 5000 आदमियों को जहाँ पे खाना खिलाते हैं, सही है, एक मौजा लिखा हुआ है, 5 रोटियां 2 मछलियां ली और बरकत डाली, 5000 आदमी थे खाने वाले, बच्चे औरतें निकाल कर, ठीक है। और क्या होता है कि उस वाक्य के बाद भी लोगों ने कोशिश की कि तू हमारा बादशाह बन जा, लेकिन यीशु मसीह ने वहां से निकलना अच्छा समझा, क्योंकि अभी वो वक्त नहीं आया था। यीशु मसीह अपने बाप के मुकर्रर करदा वक्त को तजावज नहीं करते थे, उसकी जल्दी नहीं करते थे, उसको डिले भी नहीं करते थे। जो बात यीशु मसीह के हक में उसके बाप ने कह दी थी, वो उस पर कारबंद रहता था, वो उसको पूरा करता था और वक्त पर पूरा करता था उसको। हर बात, हर काम यीशु मसीह अपने बाप की मर्जी के साथ पूरा करता था। इसलिए यीशु मसीह अपने आप को बादशाह के तौर पर डिक्लेयर करते, उन पर खोल देते, उन पर रिवील कर देते कि मैं ही हूँ वो बादशाह। तो उसके लिए अभी वक्त सही नहीं आया, हमें उसके लिए सही वक्त नहीं आया। अब क्या होता है, एक दिन यीशु मसीह जब वक्त आन पहुंचता है, 3 साढ़े 3 बरस यीशु मसीह ने मुनादी की अपनी इस जमीनी जिंदगी के अंदर। उसके बाद यीशु मसीह 2 ईदे फसा यीशु मसीह की खिदमत में गुजरी पहले भी। अब ये तीसरी ईदे फसा आने वाली थी, यहूदियों की ईदे फसा नजदीक थी और इसमें चंद दिन रह गए, इसमें चंद दिन रहते थे, 1 हफ्ता रहता था इसमें, 6 दिन रहते थे। लिखा है यहूदियों की ईदे फसा में 6 दिन रह गए। अब 6 दिन रह गए तो यीशु मसीह यरीहो के अंदर थे। ये मैं आपको सोमवार वाले दिन की बात बता रहा हूं, ठीक है, हफ्ते वाले दिन की। यीशु मसीह यरीहो के अंदर थे। यरीहो एक ऐसा शहर था जिसे दूर दूर से लोग देखने के लिए आते थे। जानते हैं क्यों? क्यों देखने के लिए आते थे? दूर दूर से ज़ियारतें करने आते थे यरीहो को लोग, क्योंकि लोग देखने के लिए आते थे कि वो देखे तो सही जाकर कौन सा शहर है जो बगैर हथियारों के, बगैर गोला बारूद के, बाजे बजान दे नाल जेड़े शहर की दीवार टेक पई। हालेलुया। यीशु मसीह ने यीशु को कहा, यीशुआ को, चक्कर लगा इसके गिर पर, और नरसिंगे फूंक और चक्कर लगा और वो यरीहो की दीवार गिर गई। उस गिरी हुई दीवार को लोग देखने आते थे कि यहोवा खुदा ने बैंड बाजे दे नाल जेड़ी वो दीवार गिराई थी, उसको देखने के लिए आते। अब यीशु मसीह यरीहो से निकले, हफ्ते वाले दिन थे, और फिर संडे वाले दिन वो यरीहो से निकलकर यरूशलेम की तरफ आए, ठीक है, यरीहो से निकलकर यरूशलेम की तरफ आए। अब यरीहो से यरूशलेम तक का जो फासला था ये 24 किलोमीटर था, ठीक है, 24 मील कहने आप, 24 किलोमीटर कहने आप, और माइल्स में आप जब आएंगे मीलों में तो ये थोड़ा कम मील होते हैं, मील थोड़ा होता है किलोमीटर से। 24 किलोमीटर का फासला था, कहां से? यरीहो से यरूशलेम तक का। अब जैसे यहां से किला दीदार सिंह से नहीं, चंद किला भी इतना नहीं है, ठीक है, आगे आप कामों की तक मोड़ तक जाएंगे, ठीक है, चंद किला यहाँ से 17 किलोमीटर है, 17-18 यहाँ से किला दीदार सिंह से, तो इतनी दूर का फासला था। तो अब यीशु मसीह यरूशलेम की तरफ आए हैं, वहां से निकलकर, यरीहो से निकलकर वो कहां पर आए? यरूशलेम में आए। 24 किलोमीटर का फासला तय करके तो कितनी देर लगी होगी? पैदल सफर, पहाड़ी रास्ता, और बीच में पहाड़ था जिसको जैतून का पहाड़ कहा जाता है, ऑलिव माउंट जिसको कहा जाता है, ठीक है, और वो रास्ता पहाड़ी था, बहुत बुरा रास्ता था, और उसको पैदल यरीहो से यरूशलेम आते आते पैदल 6 घंटे लगते थे, ठीक है, उस टाइम की बात कर रहे हैं। आजकल तो मॉडर्न सड़कें हैं, शू करके 10-15 मिनट 20 मिनट में जहाज भी ले जाते हैं, गाड़ियां भी ले जाती हैं, ठीक है। तो पैदल सफर तकरीबन 6 घंटे का सफर था। और जब गर्मियां आती थी, गर्मियां सावन भादरों,
तो फिर वो सफर 8 घंटे पे भी चला जाता था, क्योंकि फिर रास्ते में सांस लेना पड़ता था, गर्मी की बदौलत बैठना पड़ता, सांस लेना पड़ता था, ठीक है। लेकिन ये बहार का मौसम था जब यीशु मसीह आए, ठीक है, अप्रैल का महीना था। तो यीशु मसीह वहां से निकलकर यरूशलेम में आए। अब इतवार वाला दिन आ चुका है। जब ये इतवार वाला दिन यरूशलेम में आए तो यहां से खास कहानी शुरू होती है। वो जिस टॉपिक पर हम सीख रहे हैं, जो आज इबादत हो रही है पाम संडे के ताल्लुक से, खजूरों का इतवार क्या है, कैसे ये कहानी शुरू हुई, ये कैसे मनाया गया, ये सारी बातें यहाँ से शुरू होती हैं। आप जानते हैं उस दौर के अंदर यरूशलेम की कुल आबादी कितनी थी? 3 से 4 लाख के करीब थी, सही है। यरूशलेम की कुल टोटल आबादी जो थी उस वक्त में वो कितनी थी? यरूशलेम शहर की आबादी 3 से 4 लाख के करीब थी। लेकिन जब हर साल चौथे महीने की 14 तारीख को, हमारा चौथा, यहूदियों का पहला महीना, ठीक है, ये हमारा चौथा है और यहूदियों का पहला है, यानी उनका ये न्यू ईयर चल रहा है। हमारे अप्रैल 1 को चौथे महीने की पहली होती है, यहूदियों की निसान का महीना उसको कहते हैं, वो उनका नया साल होता है। और खुदा यहोवा ने फरमाया था, तुम मिस्र में से मैं तुमको निकाल कर लाया था, ईद फसा मनाई गई थी, इसलिए इसको तुम साल दर साल मनाते रहना। और इसीलिए यहूदी हर साल वो ईद फसा अप्रैल के महीना में मनाया करते थे। अब ईद के बारे में कुछ चीजें ऐसी हैं कि ईद फसा पर आने के लिए ये असूल था, और खुदा ने कहा था यहूदियों को कि हर यहूदी ईद फसा पर जहां भी होगा, जहां भी होगा, दुनिया के किसी कोने में भी होगा, यहूदिया में हो, सामरिया में हो, या फिर इससे भी बाहर, वो ईद फसा करने के लिए कहां पर आएगा? यरूशलेम के अंदर आएगा। इस ईद पर, ये 7 दिन ईद चलती थी, ईद फसा 7 दिन तक चलती थी। इस ईद को मनाने के लिए हर यहूदी को यहाँ पर आना पड़ता था। वो यहाँ पर आकर ईद मनाया करते थे। अब ईद मनाते थे यहाँ पर आकर, सही है। अब क्या होता है, ईद मनाने के लिए यहाँ पर आते थे हर कोई, तो वो नजदीक थी ईद फसा नजदीक थी, इसलिए लोग काफी ज्यादा आ रहे थे, आ चुके थे, उसमें यरूशलेम में आ चुके थे लोग कि वहां पर जाके रेस्ट करेंगे, 2-3 दिन आराम फरमाएंगे, फिर ईद फसा में हम शामिल हो जाएंगे। अब ये संडे वाला दिन है, और संडे को क्या होता है कि यीशु मसीह जैतून पहाड़ के बिल्कुल ऐसे ऊपर हैं, और सामने 2 गांव हैं, बैतनिया और बैतफगे। अब यीशु मसीह अपने 2 शागिर्दों को भेजते हैं कि जाओ वो सामने वाले गांव में जाना, और वहां पर तुम जाकर जब एंटर ही होगे, उस मोहल्ले में जब दाखिल ही होगे, तो क्या होगा? गधी का बच्चा बंधा हुआ मिलेगा तुम्हें, और जाकर उसे खोल कर ले आना। और अगर कोई पूछे क्यों खोलते हो मियां, तो बताना कि खुदावंद को इसकी जरूरत है और वो तुम्हें आने देंगे। ऐसे ही हुआ। क्या सराई है कि वो दोनों शागिर्द पतरस और यूहन्ना थे, ये ज्यादा इकट्ठा रहा करते थे, ठीक है, ये बहुत ज्यादा इकट्ठा रहा करते थे, और ये इकट्ठे जाते भी थे, कितनी जगहों पर ये इकट्ठे जाते थे। इसलिए ये 2 शागिर्द जो हैं वो जाते हैं और गधे का बच्चा खोलकर ले आते हैं, और यीशु मसीह को पेश करते हैं। और यहां से यरूशलेम के फाटक में दाखिल होना है यीशु मसीह ने। यरूशलेम के फाटक से अब एंट्री है यीशु मसीह की। अब यरूशलेम में दाखिल हो रहे हैं यीशु मसीह। अब यीशु मसीह दाखिल होते वक्त जब गधे पर बैठे, तो उन्होंने अपने कपड़े, शागिर्दों ने क्या किया? बिछा दिए, किस पर? गधे पर डाले, और गधे पर कपड़े डाल दिए उन्होंने, और फिर यीशु मसीह को ऊपर बिठाया। अब यहाँ पर एक बड़ी खास बात है कि उन्होंने, कोई बता सकता है किस पर कपड़े डाले थे? यीशु मसीह किस पर बैठा था? गधे पर कि उसके बच्चे पर? हाँ जी, उसके बच्चे पर बैठा था। उसके बच्चे के ऊपर कपड़े डाले गए थे, लादू पर
कपड़े डाले गए थे। और हमें यही पता है, इसलिए इसके अंदर एक छोटी सी रमज है, इसके अंदर छोटा सा बड़ा खूबसूरत एक लेसन है। अब मत्ती की इंजील में उसके 21वें बाब की 7वीं आयत को बुलंद आवाज में फटाफट एल्डर साहब पढ़ दे कि कपड़े किस पर डाले थे? गधी के बच्चे पर कपड़े डाले। और फिर आप पढ़ दे बुलंद आवाज में 21वें बाब की 7वीं आयत को पढ़ दे। हम यहाँ पर एक बड़ी खूबसूरत बात सीखने के लिए, सभी इधर देखें, बस एक बंदा कोई पढ़ दे, ठीक है, कि इसमें एक बड़ी खूबसूरत छोटी सी बात छुपी हुई है कि कपड़े उस पर डाले और यीशु मसीह उस पर बैठ गए। और ये सारा माजरा बुलंद आवाज में बेटी पढ़ लो। और गधी और बच्चे को लाकर और गधी और बच्चे को लाकर, यानी ये दोनों को लेकर आए हैं, शागिर्द दोनों को लेकर आए हैं। क्या हुआ? अपने कपड़े उन पर डाले। अपने कपड़े उस पर डाले, उन पर उन पर डाले, गधी और उसके बच्चे पर, दोनों पर कपड़े डाल दिए। और फिर आगे क्या हुआ? और वो उन पर बैठ गए। और वो उन पर बैठ गया, उन दोनों पर बैठ गया। अब कपड़े शागिर्द दोनों को खोल कर, सभी देखें, शागिर्द दोनों को खोल कर लाए हैं और उन्होंने अपने कपड़े भी दोनों पर डाल दिए हैं और यीशु मसीह भी उन दोनों पर बैठ गया आयत के मुताबिक। अब ऐसा कैसे होता है? दोनों पर कैसे? एक उधर एक इधर, कैसे बैठ सकता है उन दोनों पर? पहाड़ से होकर यरूशलेम में जाना था। समझ आ रही है बात की? इधर था बैतनिया, ये पहाड़ था, इधर था यरूशलेम। बैतनिया से बच्चे को और उसकी मां को लेकर आए, गधे को और छोटे बच्चे को, गधे को भी, और यहाँ पर पहाड़ से होकर यरूशलेम में जाना था यीशु मसीह ने। ये पहाड़ पे कोई लोग कोई नहीं सन यरूशलेम में रहने वाला। बात समझ में आई? अब पेशीन कोई क्या हुई थी कि वो लादू के बच्चे पर सवार होगा जब यरूशलेम में एंटर होगा। अब क्या होता है? गधी के ऊपर बैठ के पहाड़ क्रॉस कर देने थे, अगों जाके फिर बच्चे पर बैठकर यरूशलेम में एंट्री मारते हैं यीशु मसीह। बात की समझ आ रही है? अब इसमें बड़ी खास बात क्या है? कपड़े दोनों पर डाले गए। सुनिए, गधे पर कपड़े डाले गए और फिर उसकी मां पर भी डाले गए, दोनों पर कपड़े डाले गए। यीशु मसीह को क्या चाहिए था? बच्चा चाहिए था, उसकी जरूरत थी, उसने पेशेंट को पूरी करवानी थी और वो चाहिए था सिर्फ, ठीक है। लेकिन उसके साथ उसकी मां की भी इज्जत बन गई। हालेलुया, हालेलुया। सुन लीजिए, जिनके बच्चे खिदमत में आते हैं, यीशु मसीह के पास आते हैं, जिनकी बेटियां, जिनके बेटे चर्च में खुदा के पास आते हैं, खुदा के लिए इस्तेमाल होते हैं, खुदा उनको इस्तेमाल करना चाहता है, वो खुदा के लिए यूज हो रहे हैं, वो क्वायर का हिस्सा है, वो बाइबल स्टडी का हिस्सा है, वो संडे स्कूल बेटियां चला रही हैं। सुन लीजिए, जब उनकी इज्जत होगी, जब उनका नाम लिया जाता है, तो उनके साथ उनके माँ बाप की भी इज्जत की जाती है। आमीन। खुदा उनके माँ बाप की भी इज्जत करता है। ये खुदा की शान है। कहा जाता है फलाने का बेटा खादम बन गया, सही है, तो इसमें उसकी भी बड़ी इज्जत होती है। खादम बेटा वे बुजुर्गों को लोग सलामा करते हैं, सलाम पादरी साहब, कई उन्होंने पादरी साहब भी कह देते, ठीक है। सुनिए, इसलिए अपनी औलाद को खुदा के लिए पेश करें। जिनकी औलाद इस्तेमाल हो रही है वो खुश हों कि हमारी बेटियां, हमारे बेटे खुदा के लिए इस्तेमाल हो रहे हैं। आमीन। अब उन पर कपड़े डाले। अब यीशु मसीह लादू पर सवार हो गए। अब जब यरूशलेम में एंटर हुए तो वहां पर यरूशलेम की आबादी कितनी थी उस दौर में? 3 से 4 लाख के दरमियान रहती थी। लेकिन ईद फसा पर चूंकि ये उनको हुक्म था कि हर यहूदी जहां पर भी होगा निकलकर ईद फसा करने के लिए यरूशलेम में आएगा। अब यरूशलेम के अंदर बड़ा रश पड़ जाता था उन दिनों के अंदर। जब भी ईद फसा आती थी, उससे पहले और उसके बाद भी बड़ा ज्यादा रश पड़ जाता था। दुनिया में से जहां के इलाकों में से सारे यहूदी जब निकल कर यरूशलेम में जाते थे तो उसकी आबादी 12 से लेकर 20 लाख के करीब चली जाती थी, ठीक है। 12 से लेकर तकरीबन 20 लाख के करीब तक चली जाती थी आबादी। अब इतनी आबादी है वहां, इतने लोग हैं यरूशलेम के अंदर, 20 लाख के करीब लोग वहां पर यरूशलेम के अंदर। इधर देखो, सारे जिधर कलाम होता है ना उथों जिंदगी गल्लां उधर देखा, ठीक है। अब यरूशलेम के अंदर
20 लाख के करीब लोग थे। और जब पता चला कि वो नबी, नासरत का नबी यीशु मसीह, जिसके बारे में अक्सर सुनते रहते हैं कि वो बादशाह भी खुद को कहता है, लोग भी उसे बादशाह मानते हैं, तो बहुत सारे लोग सच्ची मुच्ची मानते भी थे। वो कहते थे यही है वो आने वाला बादशाह। ठीक है, सामरी औरत ने जाकर कहा मुझे वो क्रिस्तुस मिल गया, जो आने वाला नबी था वो आ चुका है। इंद्रियास ने जाकर अपने भाई पतरस से कहा वो आने वाला क्रिस्तुस मुझे मिल गया है, वो नबी आ चुका है। बात समझिए आप। इसलिए जब भीड़ ने देखा कि यरूशलेम शहर में फाटक के अंदर दाखिल हुए यीशु मसीह, तो क्या हुआ? लोगों ने फिर ऐसा इस्तकबाल किया, उनको ये जकरिया 9 बाब की 9 आयत वाली पेशन गोई याद आ गई, क्योंकि वो इस्राएली लोग थे, वो यहूदी लोग थे, वो पुराने सहीफों को जानते थे, सारी पेशन गोइयों को वो जानते थे, यीशु मसीह के बारे में हो चुकी थी। इसको भी वो जानते थे कि एक दिन वही बादशाह जिसकी धूम मच जाएगी, जिसकी शोहरत इलाकों में फैल जाएगी, वो बादशाह यरूशलेम के अंदर एक दिन गधे के बच्चे पर बैठ कर आएगा। अब जब उन्होंने यीशु मसीह के मौजूदात को भी वो जानते थे, उसके मुर्दों के जिंदा करने को भी वो जानते थे, और उधरों नवा लाजर जिंदा होया आज। इसलिए लाजर को देखने बड़े लोग आते थे, और लाजर ने देखा चढ़ी गया, चौथे दिन में जिंदा हो गया। बात समझी कि यीशु मसीह जब दाखिल हुए, सब लोगों को पता चल गया आने वाला बादशाह यही है, इसने पेशन गोई आज पूरी कर दी है। गधे पर, लादू पर वो सवार है। इसका मतलब है गधे पर सवार होने का मतलब था सुलह, सलामती। जंग पर सवार होने का मतलब है जंग। घोड़े पर सवार जंग का निशान है, गधे पर सवार सुलह का निशान है, सुलह सलामती का निशान है। और यीशु मसीह के बारे में ये साया कहता है कि वो अब्दियत का बाप, सलामती का शहजादा है, वो सलामती का शहजादा है, अमन का शहजादा है, वो अमन लेकर आया है। इसलिए वो गधे पर सवार होकर आया है। तो लोगों ने क्या किया? वहां पर नारे लगाना शुरू कर दिए, होशाना 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 के नारे लगाना शुरू कर दिए। और आप सोचें कि बहुत बड़ी भीड़ थी, 20 लाख लोगों की भीड़ जब मिलकर कहती होगी होशाना, तो यरूशलेम से कैसी आवाजें बुलंद होती होंगी। हालेलुया हालेलुया। यरूशलेम में से कैसी आवाजें रेज होती होंगी, यरूशलेम की दीवारें सुनती होंगी कि ये कौन बादशाह आया है। और हमारे एक टीचर हैं जनाब मोहतरम दानिश साहब, सरदानिश साहब, वो कहते हैं कि यरूशलेम की गलियों से जाकर पूछो, उन दीवारों से जाकर पूछो कि तुमने ऐ यरूशलेम की गलियों, ऐ दीवारों, तुमने दाऊद बादशाह से लेकर आज तक बहुत सारे बादशाहों का अरूज व ज़वाल देखा है, तुमने दाऊद को देखा है, तुमने सुलेमान जैसे एक बहुत महान बादशाह को देखा जिसकी सल्तनत बहुत दूर तक फैल गई, तुमने बड़े बादशाहों को देखा, महान बादशाहों की सल्तनत को यहाँ पर देखा है, और उनकी शोहरत को भी देखा है, और उनके अरूज को भी देखा, उनके ज़वाल को भी देखा है। आज बता, यरूशलेम की गलियों से पूछे कि आज के दिन ये इस्तकबाल जो इस बादशाह का हो रहा है, आज तक किसी का नहीं। ऐसा इस्तकबाल आज तक ना देखा गया, ना इसके बाद देखा जाएगा कि 20 लाख के करीब लोग पूरी कायनात के यहूदी मिलकर होशाना के नारे लगा रहे हैं, और यरूशलेम की गलियों को पता चल रहा है कि यहाँ पर कोई आ रहा है। और हमने पीछे मैं बोल रहा था कि काफी दफा उन्होंने यीशु मसीह को कहा तू हमारा बादशाह है, आ जाओ मैदान में, हमारा बादशाह तू ही है। लेकिन यीशु मसीह ने उनको एग्री उनके साथ नहीं किया। लेकिन आज के दिन यहूदी रब्बी आकर कहते हैं इनको खामोश करवा। अब जो नारे लग रहे हैं, यीशु मसीह खुश हैं। अब यीशु मसीह गधे पे सवार हैं, लोगों ने अपनी चादरें नीचे बिछा दी, लोगों ने खजूर की डालियां नीचे, खजूर की डाली विक्ट्री की निशानी है, फतह की निशानी है, फतह का निशान है कि ये हम फतह कर चुके हैं। ये ईमान है कि हम फतह कर चुके हैं, जब बादशाह आ चुका है तो फिर फतह भी हो चुकी है। इसलिए खजूरें पकड़ी और खजूरों की डालियां लहराई और रास्ते में भी बिछाई, और उन्होंने अपने कपड़े, अपनी महीन कतानी चादरें उतार कर गधे के
आगे आगे बिछाते गए और यीशु गधे के ऊपर है और गधा ऊपर चद्दरों के चल रहा है। हालेलुया। फिर जिस गधे के ऊपर यीशु सवार हो जाए वो गधा गधा नहीं रहता, लोग उसके नीचे कपड़े बिछाते हैं। हालेलुया। जे यीशु दा जलाल जिंदगी च उठ जावे ना ते फिर वड्डे वड्डे ना खोते तो सवा कुछ नहीं रह जाते पीछे। बात समझ रहे हैं? समार वाले दिन वही गधा गया होना उन्होंने मतलब डिंचू डिंचू करता, फिर लोगों ने क्या किया? कपड़े बिछाए। फिर कोई कपड़े नहीं बिछाए। अगर यीशु नहीं है ऊपर तो फिर कोई इज्जत नहीं है। एक खादिम की इज्जत यीशु मसीह के साथ है, उसके जलाल के साथ है। जब तक खुदा का जलाल उसकी जिंदगी पर है, उसके ऊपर खुदा का जलाल मंडलाता रहेगा, दुनिया में उसकी इज्जत होगी। वरना फिर वही लोग क्या करेंगे? वो जानता जी पैन भूखता करना है शिवामा मंडल वाले वो जान रहे थे, अजकल कुंडियां खड़काते थे। ठीक है, वही पादरी थे जेड़ा कहंदा हुंदा सी मैं 500 से कम गैदरिंग में आता ही नहीं, आज कुंडी खड़का के कह रहे पैन जी दुआ करना है। सुने, ये जिंदगी है, हमें इन चीजों से सीखना चाहिए। जब तक हमारे ऊपर खुदा का जलाल है, कोशिश करें जितने भी खुदा मज़रात हैं और कलीसिया भी, हमारी जिंदगी से खुदा का जलाल ना उठ जाए। आपकी जिंदगी का सबसे बदसूरत तरीन दिन वो होगा जब खुदा ना करे खुदा का जलाल हमारी जिंदगी से उठ जाए। इसलिए खुदा का जलाल उस हमारे ऊपर रहना चाहिए। अपनी जिंदगी को पकीज़ा रखें ताकि खुदा का जलाल हमारे ऊपर रहे और हमारी दुनिया में इज्जत बढ़ी रहे। अब यहाँ पर कपड़े बिछाए जा रहे हैं, नारे लगाए जा रहे हैं, खजूर की डालियां लोगों ने लहराना शुरू कर दी, बिछानी आगे शुरू कर दी। अपने उन्होंने वो उनके लिबास होते थे यहूदियों के, और बड़े अच्छे कपड़े उन्होंने आगे बिछाना शुरू कर दिए। यीशु मसीह हमारा बादशाह आ गया, हमारा बादशाह आ गया, तू ही हमारा बादशाह है। होशाना का मतलब क्या है? होशाना, होशाना, होशाना का मतलब क्या है? नहीं, होशाना का मतलब क्या है? बुलंद आवाज में कोई बताए। होशाना का मतलब है हमें निजात दे, दे हमें निजात दे, हमें बचा। ए कल्पन दे हम 20 लाख लोग कि हमारा बादशाह आ गया, अब हमें बचा, अब हमें बचा। अब लोग इतनी ज्यादा नारे लगा रहे हैं, जोश के साथ यीशु मसीह के कदमों में हाथ लगा रहे हैं, उस जमीन को चूम रहे हैं जहां से यीशु मसीह गुजर रहे हैं। यीशु मसीह की वो इतनी ज्यादा जो है ना, वो इस्तकबाल, पुरतपाक इस्तकबाल कर रहे हैं। वो पेश कर रहे हैं अपने आप को, अपनी चदरें बिछा रहे हैं। कोई फूल फेंक रहा होगा, डालियां ले ली उन्होंने, फसलें लगी थी वहां से डालियां तोड़ ली उन्होंने, खजूर की डालियां ले ली उन्होंने। ठीक है, और वो लहरा रहे हैं और आगे बिछा रहे हैं, यीशु मसीह आजा हमारा बादशाह, हमने तुझे अपना बादशाह कबूल कर लिया है, तू ही हमारा बादशाह है, इसलिए हम तेरा इस्तकबाल शाहाना तरीके से कर रहे हैं। ऐसा इस्तकबाल आज तक यरूशलेम के अंदर किसी का नहीं हुआ। तू हमारा बादशाह है, इसलिए तेरा इस्तकबाल कर रहे हैं। वो सारे लोग यीशु मसीह को अपना बादशाह मान चुके थे। अब क्या होता है? बड़ा शाहाना इस्तकबाल होता है और इतवार का दिन गुजर जाता है, शाम हो जाती है, हर कोई बहुत खुश है, हमारा बादशाह आ चुका है, हमारा बादशाह आ चुका है। अब लोग क्या सोच रहे हैं यहाँ पर? क्या लोग यीशु मसीह से प्यार करते थे? क्या यीशु मसीह के मौजज़ात से प्यार करते थे? क्या यीशु मसीह की हस्ती से, उसकी जात से वो मुतासर होकर ये सारा इस्तकबाल कर रहे थे? क्या सच में वो यीशु मसीह को खुदा का बेटा मानकर और ईमान लाकर उसका इस्तकबाल कर रहे थे? ये सारे नारे, जश्न, जुलूस, ये सारा कुछ मेरा यीशु दिल से बादशाह इसलिए हो रहा है। सुनिए, आज भी हम, आज के दिन है, हर चर्च के अंदर रैलियां निकाली जाती हैं, हालेलुया, होशाना, होशाना के नारे लगाए जाते हैं, गीत गाए जाते हैं, बाजारों के अंदर फूल फेंके जाते हैं, खजूर की डालियां लहराकर फिर से वही सीन एक तवा दोबारा से बनाया जाता है और ऐसा लगता है जैसे दोबारा से यरूशलेम में हम आ गए हैं। और ये सारा यीशु मसीह के इस्तकबाल के लिए हो रहा है और सारी कलीसिया और पादरी साहब मिलकर होशाना के नारे लगाते हैं, इसलिए कि हम दिल से मानते हैं कि तू हमारा बादशाह है। हम भी उस भीड़ की तरह नारे लगाते हैं और उस भीड़ की खासियत सुन लीजिएगा। वो भीड़ नारे इसलिए लगा रही थी कि तू हमारा बादशाह है, अब हमें रोमियों की हुकूमत से छुड़ा।
अब हमें रोमियों की हुकूमत से छुड़ा। सीधा जावेगा बादशाह दे महल च ते दे तेरे दी, ठीक है। इथों फड़ेगा बादशाह नूं जाके साडा यीशु ते मैनू सारिਆਂ ਨੂੰ 20 ਲੱਖ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਆਖੇਗਾ चलो इन्हां ਨੂੰ फड़ो, सारिਆਂ ਨੂੰ इन्हां ਨੂੰ कढिए इथों यरूशलेम चो। वो ये सोच रहे थे, वो बादशाह की तलाश में थे, नजात दहिंदा की तलाश के नारे नहीं लग रहे यहाँ पे बादशाह के नारे लग रहे हैं। अब वो कह रहे हैं सारे, वो क्या होगा, वो छोड़ जाएंगे, यहाँ से निकल जाएंगे। अब रोमी लोग यहाँ से छोड़कर चले जाएंगे, हमारा बादशाह आ चुका है, हमारा बादशाह लोहे का आसा पकड़ लेगा, तलवार पकड़ लेगा, इनको सबक सिखाएंगे सारे मिलके। और उनकी गर्दें जुड़ी हुई थी, मेरा तो ओहदा मुझे मिलेगा। कोई सोच रहा था मैं अफसर लग जाऊंगा, अब मैं बड़ा पढ़ा लिखा यहूदी हूँ, लेकिन मुझे नौकरी नहीं मिलती थी। अब देखना मेरा यस्सु आ चुका है, बादशाह आ चुका है, अब मुझे सरकारी नौकरी मिलेगी। कोई कह रहा है अब मैं यहाँ पे अपना बिजनेस करूंगा, क्योंकि यहूदी जितने भी बिजनेस करते थे वो उनका कोई फायदा नहीं होता था, टैक्स सारा रोमी हुकूमत वाले ले जाते थे। कुछ सोच रहे थे कि यहाँ पर मैं अंगूरों का पाकिस्तान लगाऊंगा, मैं यहाँ पर, और मैं ये कर दूंगा वो कर दूंगा, इसलिए जोश से नारे लगाते थे। जिन्हां दी आवाज इबादत च कभी नहीं निकली, रेलियां चो भी नारे लाते। हालेलुया, सही है। जो कभी गीत में हिस्सा नहीं डालते वो भी वहां पे नारे लगा रहे थे, होशाना हालेलुया। लेकिन यीशु मसीह शाम के वक्त, संडे की शाम को यीशु मसीह ने क्या कहा, वो सीधा यहां से होकर सीधा हैकल में चले गए, और हैकल में लोग नारे लगा रहे हैं हालेलुया के, होशाना होशाना के। और रब्बी जो थे वहां पर वो जेलस होते थे यीशु मसीह से, वो बड़े दिनों से नोट कर रहे थे कि किसी तरह इसको हलाक कर देते हैं, इसकी शोहरत बढ़ती चली जा रही है, और आज तो इसने इंतहा ही कर दी है। उस दिन से वो यीशु मसीह को हलाक करने की मजबूत तैयारियां शुरू करने लगे कि बस होने को खत्म कर देना जितनी जल्दी हो सकता है, ठीक है। अब यहाँ वहां पर यहूदियों ने, रब्बियों ने कहा कि इनको खामोश कराते रहे, शागिर्द खामोश क्यों नहीं होते। अब हैकल के अंदर आप जानते हैं 900 के करीब बंदा सिक्योरिटी वाला था, 300 के 3 जत्थे बने हुए थे, इतनी सिक्योरिटी वाले थे। लेकिन जब नारे लगते हैं, किसी की जरूरत नहीं पड़ती कि उसको खामोश करवाएं उन लोगों को, और फिर यीशु को आके कहते हैं इनको खामोश करवा, जैसे अक्सर तू करवाया करता था। यीशु मसीह ने कहा आज ये नहीं बोलेंगे तो पत्थर चिल्ला उठेंगे। हालेलुया, बोलन दो ना, टाइम आ चुके हैं। इससे पिछले बार में आप पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा यीशु मसीह ने ये जान करके मेरी मौत का वक्त नजदीक है। अब यीशु मसीह जान चुके थे कि बाप की तरफ से मामला सेट हो चुका है, मैदान तैयार हो चुका है कि पूरी दुनिया का कफारा दिया जाए, पूरी दुनिया के लिए निजात दहिंदा अपना काम पूरा करे। इसलिए यीशु मसीह ने ये होने दिया। अब यीशु मसीह ने ये होने दिया और फिर शाम हो गई। थोड़ी सी बात रहेगी, गौर से सुनिएगा। शाम के वक्त यीशु मसीह ने हैकल में, जब हैकल में गए तो हैकल की सारी चीजें मुलाहिजा फरमाई। आग ही लगावे, चर्च में ये कहाँ पर है, ये क्या है, ये क्या, वो क्या, ये वो, सारी चीजों को मुलाहिजा किया, उनका हिसाब किताब लगाया, कौन सी चीज कहाँ पर है। सारा हिसाब किताब लगाने के बाद यीशु मसीह बैतनिया में चले जाते हैं। अब एक और बात बड़ी जरूरी है, ये जुमेरात वाला मैसेज भी है, इसके आगे वो हम जुमेरात को सीखेंगे कि जब भी कोई यहूदी यरूशलेम के अंदर आ जाते थे एक दफा ईद फसा मनाने के लिए, और वो वहां पर फसा का बर्रा भी खरीदते थे। हर कोई अपना बर्रा खरीदता था, वहां पर वो बर्रा खरीदता था, और फिर वो बर्रा दोबारा यरूशलेम से बाहर नहीं जा सकता, ठीक है। जो खरीद लिया एक दफा यरूशलेम में, वो दोबारा यरूशलेम से बाहर नहीं जा सकता था। सिर्फ वो 3 किलोमीटर के अंदर अंदर रह सकता था। कहां पर? 3 किलोमीटर के अंदर अंदर वो बर्रा फिर सकता था, रह सकता था। अब यरूशलेम शहर में, बैतलहम में भी, और वहां पे बड़ा ज्यादा रश होने की बाबत, रश होने के वजह से यीशु मसीह क्या किया करते थे, शाम होती थी तो बैतनिया को चले जाते थे, लाजर के घर में। अब यीशु मसीह फसा का बर्रा है, ये भी यरूशलेम से बाहर जा नहीं सकता था, इसलिए बैतनिया का फासला यरूशलेम से 2.5 किलोमीटर था, 3 किलोमीटर से कम भी था। यानी यीशु मसीह यरूशलेम के अंदर ही रहते थे, बाहर बिल्कुल भी नहीं जाते थे। और इसके बाद यीशु मसीह कभी यरूशलेम से बाहर नहीं गए, जान देने तक कभी बाहर नहीं गए, क्योंकि बर्रे को बाहर जाना
रवा नहीं था, नहीं जा सकता था। अब यीशु मसीह चले जाते हैं बैतनिया में, कितना बेकार लाजर के घर में जाते थे, और वहां से जब फिर वापस आए, फिर सुबह हुई, अगर मंडे का दिन आ गया, ठीक है, मंडे वाले दिन यानी सोमवार वाले दिन क्या होता है, यीशु मसीह फिर आते हैं चगिर्दों के साथ और हैकल में दाखिल होते हैं और रस्सियों का कोड़ा बनाते हैं। अब यीशु मसीह ने वहां पर देखा, कल जो चीजें मुलाजा करके यीशु मसीह गए थे, तो क्या क्या हो रहा था वहां पर। यहूदियों की ईद फसह नजदीक थी और यीशु यरूशलेम को गया, और उसने हैकल में बैल और भेड़ और कबूतर बेचने वालों और सराफों को बैठे पाया, और उसने रस्सियों का कोड़ा बनाकर सबको, हाँ जी, सबको किना नु पाला, हाँ जी, बोले तो सही, किनको मारा? नहीं, कबूतर फरोशां ते यहूदियां इंसानां नु नहीं मारे कोड़े, ठीक है। बात औकात हम भी अगर किसी बंदे की गलती हो ना तो बंदे को कुटन लग पड़ते हैं। यहाँ पर गौर से पढ़िए आप, यूहन्ना कीजिए दूसरे बाप की, मैं 15वीं आयत पढ़ने लगा, और रस्सियों का कोड़ा बनाकर सबको यानी भेड़ों और बैलों को हैकल से निकाल दिया, ठीक है, और सराफों की नकदी बिखेर दी और उनके तख्ते उल्टे दिए। जुर्म से नफरत करनी है, मुजरिम से नफरत नहीं करनी। एक बंदा भैड़े काम करने थे, बंदे तो नफरत शुरू कर देना, बंदा ही नहीं सही, उससे नफरत नहीं करनी चाहिए। यीशु मसीह ने उनको नहीं यहाँ पे नुकसान पहुंचाया, उनके बुरे कामों को खत्म किया यीशु मसीह ने, समझ रहे हैं आप, उनके बुरे काम को हमने खत्म करना है, बंदे नहीं खत्म कर देना। मारी जाए ठीक है, बात बोल देते हैं ना गुस्से में आगे, ऐसा नहीं है। कोई कितना भी घिनौना काम कर रहा है, आप उस बंदे को बचाएं, उसके बुरे काम से नफरत करें, उसका बुरा काम छुड़वाएं। आप बंदे को नहीं कहना कि तुम आज के बाद ला ताल्लुक की तेरे साथ, ठीक है। अब यहाँ पर बैल और भेड़ और कबूतर बेचने वाले थे, और सराफों को बैठे हुए यहाँ पर पाया। ये कौन लोग थे? ये यहाँ पर एक्सचेंज करते थे, सिक्के एक्सचेंज कर, बात की समझ आ रही है, बात खत्म करने वाले हम। ये सिक्के एक्सचेंज करते थे वहां पर बैठ के, और ये जो थे ये बड़े खास लोग थे, मैं आपको बताऊंगा आप ये कौन थे। ये जो सिक्के एक्सचेंज करने वाले थे ये कौन थे? अब रोमी हुकूमत थी और सिक्का किसका चलता था? रोम का चलता था, ऊपर कैसर की यानी उस दौर के बादशाह की फोटो भी बनी होती थी। इसलिए यहूदी बड़े ये पाक समझते थे इस बात को कि हैकल के अंदर किसी का नापाक पैसा भी नहीं आएगा, रोमियों के पैसे भी नहीं हैकल के अंदर आएंगे, रोमी लोगों के सिक्के भी हैकल के अंदर दाखिल होने ना पाए। इसलिए वो हैकल के बाहर दरवाजे पर बैठे होते थे बंदे जो सिक्के एक्सचेंज करते थे उनके साथ। अब यहूदी वहां पर पूरी दुनिया से आए हुए थे, और सारी दुनिया से आकर हर बंदे ने वहां पर कुर्बानी करनी थी, और जो साहब ऐसे थे उन सब ने बर्रा लेना था। वहां पर बर्रा लेकर उन्होंने फिर काहिन को देना था हमारे लिए ज़िबा करे, और बहुत सारे वहां पर बर्रे ज़िबा किए जाते थे। इसलिए तकरीबन 18,000 के करीब काहिन होते थे उस टाइम में जो कुर्बानियां करने वाले होते थे, क्योंकि बहुत ज्यादा बर्रे वहां पर होते थे, इतनी तो दुनिया होती थी कुर्बानियां करने वाले। और फिर जो गरीब लोग होते थे उनको कहते थे तुसी बस कबूतरां का जोड़ा यानी कुमरियां का जोड़ा ही दे दो, बस यही आपके लिए काफी है। बात की समझ आ रही है? अब यहाँ पर वो क्या करते थे, सिक्के एक्सचेंज करने के बहाने, अब ये जो देना होता था ना हदिया, ईद फसह वाला हदिया जो देना होता था, ये लागू था हम सब पर। जो सारे यहूदी थे वहां के, उन पर लागू था कि आपने हैकल के अंदर हदिया भी देना है, जो लागू है, जो ईद फसह वाला हदिया तुम पर लागू है वो तुमने देना है। जिन्हें आजकल पादरियां की निकाह दी फीस और फिक्स हुई है, ठीक है, कई पादरी ते लाड़ी पैंदे ने, वो तो घट निकाह ही नहीं करते, ठीक है। तो कई लोग भी ऐसे होंगे ने खुसरे नचा लैनगे लाख रुपया उन्होंने तो छोड़ देंगे, खुदा नु देन दी वारी आते ने ते बात बनाना शुरू कर देते हैं, ठीक है। इसलिए हम खुदा की इन सारी चीजों को देखें, सिस्टम को देखें और इसके ताबेदार रहें। अब देखें, ये जो है वो सिक्के एक्सचेंज कर दिया करते थे। अब सिक्के लोग देते थे, और ये आगे से हैकल वाले सिक्के जो इनके चांदी और सोने के अपने सिक्के थे हैकल के, वो उनको दे देते थे ताकि चंदा डालें जाकर, और जो उनके सिक्के थे वो रख लेते थे, और वो फिर वापस हुकूमत वालों को दे देते थे। ये माजरा चलता था। अब वहां पर जो ठहराई गई थी हदिये की कीमत ठहराई गई थी, वो थी हाफ मिस्काल, हाफ मिस्काल, शक्ल भी इसको बोलते हैं,
हाफ मिसकाल कीमत ठहराई गई। ठीक है, एक मिसकाल आज के रेट के मुताबिक जानते हैं कितना होता है, कोई बता सकता है? इसराइली मिसकाल एक कितने का होता है? 80 रुपए के करीब होता है। ठीक है, तो वो पाकिस्तानी 80 रुपए का एक मिसकाल बनता है। ठीक है, और वो उनको हाफ मिसकाल, नस्फ मिसकाल यानी कि हाफ शेकल उनको देना पड़ता था। एक बंदा कितने देंदा सी? 40 रुपए। बंदे कितने जाना? समझ रहे हैं बात? इतना बड़ा प्रोजेक्ट था, इसलिए बंदे बिठाए हुए थे करेंसी एक्सचेंज करना। ये लो ये लो ये लो ये लो ये लो। अब वो कन्या कहना 50 बजे और 10 कोई नहीं है, फिर चल लगे हो गए। एक बंदे के उत्तों 10 ला लेते, को 20 बंदे 100 बंदा आ गया ना, तो 10 सीधा कर लो। ऐसे करते थे ये बेईमानियां जो बैठे हुए थे वहां पर। समझ रहे हैं आप? किसी ने 100 पढ़ाया ना, और ये सिक्के मेरे पास अपना तुम्हें आधे करके टूटे नहीं, खोले नहीं, चलो बच्चों के वो ऐसे करके उनको बड़े दाल लगाते थे। सिक्के उनके ऐसे वो खाते थे और उनको दाल लगाते थे। अब दूसरी बात, जब कोई बर्रा लेने के लिए आया है उसको बड़ा महंगा देते थे। जिन्हें पहले वेले ने ना कोल के भोजी से तो उसे कहा है बहुत महंगा, इतने का इतने का इतने, उनको बहुत महंगा देते। तो जे किसी ने घरों पाल के लाया ना कि खुदा दे सूट चढ़ाने जाके घरों पाल के लै जाने, यहूदियों के जो रब्बी होते थे उसका मुआयना करते थे बर्रे का पूरा। तो उदू पे नहीं आ छड़ दे हर वाया सही नहीं है, खाना नहीं है, दंद नहीं सही है, खाना नहीं ठीक है, ये वाल नहीं ठीक है, ये नहीं चलना खरीदना। हूँ फिर असं की करिए, अभी तो घरों लैके ये आए हैं, हमारे पास तो पैसे भी नहीं बकरा लेने के, तो हम तो लेके ये आए हैं, तो हम अब क्या करेंगे? हम तो बड़ी दूर से आए हैं, तो हम कैसे मैनेज करें? अच्छा तुहाडा हिसाब लाने हैं कि काम हो सकता है बकरा करना तो वेच छो, तो हम आपको पैसे देते हैं और उसकी सिका यहाँ से हैकल के अंदर से कोई बर्रा ले लो। ठीक है, और वो मोटा ताजा फिटिया होया घर दा पलिया होया बर्रा लैके उन्होंने अपने खान जोगा रख लेंगे हैं, ते बाद चों और उनको कोई वहां से और दे देते थे, ते मगरों उन्होंने मेदी छेदी ला के रख बरका करके बाबू उन्हें सोने ला के ते कहना है बर्रा बहुत अच्छा है, ये 10,000 का मिलेगा, किसने लेना है? तो लोग आते हैं बहुत अच्छा है लिए। ये ऐसे दाव लगाया करते थे ये जो शराब बैठे होते वहां पे। समझ रहे हैं आप? अब ये थे कौन? ये कौन बंदे थे? ये जो दाल लगा रहे थे, ये है कौन थे? ये कौन हैकल के अंदर बैठे हुए थे जो दाल लगा रहे थे? इन्होंने तख्ते उलट देते, कबूतर फरोश। और ये कौन थे? अब सुन लीजिएगा, ये सरदार काहिन हन्ना के बेटे थे। हन्ना काहिन जो था ना उस दौर का, उसके बेटे थे ये। जुमेरात वाले दिन आपको इस बात की समझ आएगी, आप इस बात को नहीं भूलना कि उसके बेटे थे। ठीक है, ये सरदार काहिन के बेटे थे, इसलिए आपने इसको भूलना नहीं है। अब यीशु मसीह थोड़े लगाते हैं चीजों को और तख्ते उलटते हैं और सारी चीजों की सफाई करते हैं और कहते हैं कि तुमने मेरे बाप के घर को डाकुओं की खो बना दिया है। और फिर सारे शागिर्दों को याद आ गई वो बात जो उसके हक में पेशेंगोई की गई थी पुराने अहदनामा में, मुझे मेरे बाप के घर की गैरत। ठीक है, ये बात पूरी की वहां पर यीशु मसीह ने। शागिर्द फिर मान गए वाकई वही मसाया है, आज तो और ही यकीन हो गया, काम पक्का हो गया। अब देखें कितने बंदे थे वहां पर, सफाई 900 के करीब वहां पे सिक्योरिटी थी, इतने रब्बी थे साथ, इतने उनके आगे बंदे थे, मुलाजम थे, किसी की जरूरत क्यों नहीं पड़ी यीशु मसीह कल ही सारा कुछ कर दिया, रोकने की जरूरत क्यों नहीं पड़ी? हमारे टीचर हैं उन्होंने सिखाया, वो बात बड़ी खूबसूरत की, मेरे दिल पर लगी। क्यों उनकी जरूरत नहीं पड़ी यीशु मसीह को रोकने की? यीशु मसीह खाली करवा रहे थे सारा कुछ। अब यीशु मसीह ने कहा मैं आपको एक बात समझाता हूं, जब देखो कोई घर के अंदर बैठे होते हैं, इन्होंने अड्डे लगाए हुए हैं, ये मालिक मकान नहीं है, ये अड्डे लगाकर बैठे हुए हैं, आर्थिक तौर पर बैठे हुए हैं, ते जो मालिक मकान आंदे ने ते फिर मालिक का जो साहब ज्यादा होता है ते उसको फिर किसी को पूछने की जरूरत नहीं है। जब घर के मालिक आते हैं तो वो खाली करवाना भी जानते हैं, तो किसी की जरूरत भी नहीं पड़ती कि आगे से उसको कोई पूछ ही लगे तुम क्यों खाली कराने हैं, क्योंकि उसने कहा मेरे बाप का घर है, बाप का बेटा जब आया है तो उसको जरूरत ही नहीं है किसी से पूछने की, और किसी की जरूरत भी नहीं है कि उसको उसके बाप के घर में काम करने से रोके। हमें और इसी तरह एक बात पे एंड करते हैं, खजूरों का त्योहार हमने भी धूमधाम से मनाया।
हम भी रैली निकालते हैं, जुलूस में नारे भी हमने लगाए हैं। क्या ये नारे सिर्फ हमारी गर्जों के साथ तो नहीं जुड़े हुए? यीशु मसीह इसलिए तो नहीं बादशाह के यीशु ऐ दवेगा ते बादशाह, ऐ दवेगा ते बादशाह, ये भी दे दे, ये भी दे दे, ये भी दे दे, वो भी दे दे, सारा कुछ ही दे दे। मैं आपको एक दिन बता रहा था ना, इससे बीवर रहा करें आप। प्रोस्पेरिटी प्रीचर्स बहुत ज्यादा हो चुकी हैं दुनिया में। प्रोस्पेरिटी प्रीच करते हैं वो, प्रोस्पेरिटी उनको प्रीचर्स कहते हैं। वो प्रोस्पेरिटी गॉस्पेल सुनाते हैं। वो कहते हैं खुदा बरकत दे देगा, बरकत दे देगा, घर दे देगा, गाड़ी दे देगा, बरकत दे। यही वो लोग कर रहे थे। उनको यही चीजें चाहिए थी, यीशु नहीं चाहिए था उनको। कभी किसी ने कहा यीशु मसीह मैं मेरी सलीब के तेरे जड़ी में उठाऊं, जो मेरे पीछे आने चाहता है वो अपनी हर रोज सलीब उठाए। ये यीशु मसीह की तालीम है। इसीलिए तो तौबा करवा के बपतिस्मा लोगों को दे देते, फिर कहते हैं तुम्हें बरकत मिल जाएगी, घर में बरकत आ जाएगी, ब्लेसिंग आ जाएगी, ब्लेसिंग आ जाएगी। और जो नहीं होती वो फिर तौबा वापस करना आया होता जुम्मे वाले दिन, भाई साहब वापस कर लो तौबा अपनी, जो हो सके तो बपतिस्मा भी वापस कर लो। मैनू बरकतां ते मिलियां नहीं है। जब भी किसी को मसीहत में बुलाते हैं, बपतिस्मा देते हैं, तो सबसे पहले बताएं इससे अगला पॉइंट सलीब है, दुख दर्द है, मुसीबतें हैं जो तुमने यीशु मसीह की खातिर बर्दाश्त करनी है। ये है तुम्हारा अगला प्रोजेक्ट। अब इसमें तुम्हें काम करना है, उसमें कायम रहना है। अब यीशु मसीह ने कहा क्या तुम नहीं जानते कि तुम्हारे बदन खुदा के, ये पौलुस रसूल फरमाते हैं कि तुम नहीं जानते कि तुम्हारा बदन खुदा का मक़दस है। अब हैकल क्या है? हैकल कौन है यहाँ पर? खजूरा दा त्योहार, यीशु मसीह खजूरा दा त्योहार दा जुलूस काट के गए कितने सीधा हैकल के अंदर। आज हमारी हैकल के अंदर यानी हमारे दिल में कहीं कुछ ऐसा तो नहीं कि यीशु मसीह को कोड़ा उठाना पड़ जाए। हमारे दिल के अंदर, हमारे ख्यालों के अंदर, हमारे जिस्म के अंदर कोई ऐसी चीज तो नहीं छुपी हुई, पोशीदा गुनाह तो नहीं है कि यीशु मसीह को कोड़ा उठाने की जरूरत पड़ जाए। समझ रहे हैं बात? इस पर गौर कीजिएगा, आज के सरमन पर गौर कीजिएगा कि कहीं मेरी जिंदगी में आज की खजूरों के बाद सिर्फ ये सोचना है कि कई ऐसी चीज तो नहीं है जो यीशु मसीह को गुस्सा दिला देगी, यीशु मेरे साथ नाराज हो जाएगा और उसे कोड़ा पकड़ना पड़ जाएगा। मेरी इस हरकत की वजह से उसको कोड़ा पकड़ना पड़ जाएगा और मेरे अंदर कुछ ऐसा तो नहीं है। अगर है तो मैं उदय हम तो पहला साफ कर लूँ। यीशु मसीह बहुत जल्द आने वाला है। यीशु मसीह बहुत जल्द आने वाला है। इसलिए सोच लीजिए, समझ लीजिए कि जब उसने आकर देखना क्या इब्ने आदम वापस आएगा, जमीन पर ईमान पाएगा। हमारी जिंदगियों में कहीं कुछ ऐसा तो नहीं है कि कोड़ा पकड़ने की उसे जरूरत पड़ जाए और फिर उदों ते लगे हर जानवरां नूं हुण बंदियां नूं कोड़े पैने ने। ठीक है, क्योंकि उसने पहले बताया हो। इस वजह से अपनी अपनी जिंदगी पर गौर करेंगे कि खुदा हमें कायम रखे। आज का जो सरमन है इसको हम देखेंगे कि खुदा इसके वसीला से हमारे साथ बात की है, तो हम अपनी जिंदगी को चेक करेंगे। हमारी सारी बुरी चीजें, ये जो अड्डे लगाए हुए हैं, हमने अपनी इस हैकल में अड्डे लगाए हुए हैं, उसको हमें निकालना उन चीजों को, ताकि खुदावंद आए तो वो खुशी के साथ बैठकर हमारे साथ फेलोशिप करे, खाना खाए और वो हमें बरकत दे। गॉड ब्लेस यू ऑल।